Hello Eclavians, how are you all? I hope that you and your family are doing well. Eclavians, as you are aware that we have already started with the first chapter of organic chemistry, that is Introduction to Organic Chemistry. And in this chapter we have already covered 9 sessions. So here I once again welcome you all to the 10th and the final session of the chapter Introduction to Organic Chemistry. In this session, we'll be discussing what are functional groups and how an organic compound can be classified on the basis of functional groups. We'll be also discussing in details that what are the functional groups that we are going to encounter in organic chemistry. So this is one of the most important session of organic chemistry, because here onwards if you don't know anything about functional group then you cannot do anything in organic chemistry. So organic chemistry पढ़ने के लिए functional groups का एक proper detail idea होना चाहिए जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले. सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड अगर कुछ भी डाउट डिफ़िकल्टीज आए तो मेल, कमेंट या टेक्स्ट मैसेज करना मत भूलना. ओके. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, बिफोर वी स्टार्ट एनी सेशन हम हमेशा रिवीजन करते हैं. सो लेट अस क्विकली रिवाइज सेशन नंबर 9. अगर आप लोगों को याद है तो हमने सेशन नंबर 9 में डिस्कस किया था ये, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. हमने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. स्ट्रक्चर वाला डिटेल्स में हो चुका है. सो लेट अस रिवाइज क्या क्या हमने डिस्कस किया था. ठीक है. स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया जा सकता है. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज. फर्स्ट वन ओपन चेन स्ट्रक्चर, सेकेंड वन क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स. ओके. ओपन चेन स्ट्रक्चर पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. आर मोर एम्फोसिस वन ऑन क्लोज चेन स्ट्रक्चर. तो भी एक बार क्विकली रिविजिट करते हैं. ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर गेट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. Further, they get classified into linear and branch chain compounds. Okay. Then the more important point was closed chain compounds क्या है, उसका classification क्या था. तो just to remind you, let us bring that image. अगर इस इमेज को आप ध्यान से देख रहे हो तो you can clearly see that and closed chain structure is getting classified into homocyclic compound and heterocyclic compound. Okay, homocyclic compounds further get classified into homoalicyclic and homoaromatic compound. Heterocyclic compound भी उसी तरह से classify हो रहा है into heteroalicyclic and heteroaromatic. Last but not the least, homoaromatic and heteroaromatic get further classified as benzenoids and non-benzenoids. ठीक है. So अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है. Please go through that session and you will come to know whatever terminologies I have used over here, उनका डिटेल में मतलब क्या है. Not only the terminologies, you will also find some examples and इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये भी हमने डिस्कस किया था. The link of that session number 9 is given in the description box of this video, so do visit that session. And if you are new to the channel, do not forget to subscribe the channel, and yes, do press that bell icon so that henceforth whatever videos I am going to upload you will be directly getting the notification of it. Okay, so let us start session number 10. So before starting any session, as you know that we always start a session with a motivational quote, and today's quote of the day is, or quote of the session is, remember, difficult roads often lead to a beautiful destination. I'll again repeat, remember, difficult roads often lead to a beautiful destination. अगर रास्ते में रुकावट आ रही है, डिफ़िकल्टीज़ है, नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ गिव अप मत करना, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंचना है. तो उसके लिए मेहनत, हार्ड वर्क, डिफ़िकल्टीज़ सब फेस करना ही पड़ेगा. सो यस, डोंट गिव अप. डिफ़िकल्टी है, करो, फेस करो, टैकल करो, बट एक दिन जब आप उस चीज़ को अचीव करोगे तो रियली लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट. ठीक है. So with this motivation, let us start today's session 10. In session number 10, let us discuss the first thing. What is a functional group? ठीक है. What is a functional group?
So if I want to describe or if I want to define whatever you can say a functional group, so a functional group is nothing as an atom. A functional group is an atom or group of atom. सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, a functional group is an atom or group of atom which defines the chemical properties of a family. Functional group is an atom or a group of atom which defines, you can say which defines or decide the chemical property of the entire family. मतलब एक ऐसा हिस्सा स्ट्रक्चर का जो सारे के सारे फैमिली का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है या डिसाइड करता है. तो अगर एक कंपाउंड का वैसे हो रहा है तो उसके पीछे के जितने भी फैमिली मेम्बर्स है या जितने भी होमोलॉग हैं सबके सबका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑलमोस्ट एक जैसा. ठीक है. टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेट अस टेक अल्कीन. अगर आपको कहा गया है कि अल्कीन को आइडेंटिफाई करो तो बहुत सिंपल सा चीज़ है. आप क्या बोलोगे, सर हमें सिर्फ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखना है स्ट्रक्चर में. अगर स्ट्रक्चर में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अल्कीन फैमिली का होगा. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल, सो यू विल से दैट कि सर यू नीड टू चेक OH ग्रुप. ठीक है. अगर मैं बोलूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ तो आप बोलोगे सर COOH देख लो. बट अगर अल्केन कहूँ तो यू विल से दैट कि सर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड देख लो. बट उसमें दिक्कत ये होगी, अल्कोहल्स में भी तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ सकता है ना. सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अल्केन्स का कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है. अगर सारे फंक्शनल ग्रुप्स एब्सेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्केन. ओके. बट वो सारे फंक्शनल ग्रुप कौन से ये अपने को एक्सप्लोर करना है. तो फंक्शनल ग्रुप का एक जो एक्सेप्शन है दैट इज़ अल्केन. अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है. इट इज़ जस्ट आइडेंटिफाइड एज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनदर वे टू आइडेंटिफाई अल्केन इज ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर एब्सेंट. ओके. नाउ let us start discussing what are the different types of functional group that we are going to encounter in organic chemistry. Not only functional group, we'll be seeing how to represent it, what is the structural formula, what are the examples, and what are the prefix and suffix we are going to use in IUPAC nomenclature for all those functional groups. So let us start the session. Proceeding further in this session, let us see types of functional groups that we are going to encounter, or the class of compounds you can say. First is alkane itself. Alkane functional group, as I said, you just need to see whether there is an only carbon to carbon single bond present, या कोई भी अगर functional group present नहीं है तो हम उसको alkane बोलेंगे. इसको structurally हम इसको represent करते हैं RH या कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दैट इज CH3 दैट इज इथेन. इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स हम जो यूज़ करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में वो होगा एन. ठीक है. पहला जो सेट है उसमें आप ध्यान से देखोगे तो हम प्रीफिक्स नहीं यूज़ करने वाले, सिर्फ सफिक्स यूज़ करेंगे. ओके. सो फर्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड में सेकेंड वाला आता है अल्कीन. Okay, alkene functional group is carbon to carbon double bond. It can be represented as R CH double bond CH R. The example which I am taking is CH2 double bond CH2. Okay, then no prefix, suffix is -ene. Talking about third one, that is alkyne.
कैन बी आइडेंटिफाइड बाय C ट्रिपल बॉन्ड C. रिप्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी सिंपल है, R C ट्रिपल बॉन्ड C R. ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नो प्रीफिक्स, सफिक्स इज YNE. Point to be noted over here is you cannot take R equal to H. यहाँ पे R equal to H मत ले लेना, बट यस यहाँ पे R equal to H चलेगा, यहाँ पे भी R equal to H चलेगा. यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? अगर आपने R की वैल्यू H कर दी तो यह हाइड्रोजन हो जाएगा, तो कोई कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं. R कोई भी एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे आप देखोगे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ सफिक्स है. नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें सिर्फ प्रीफिक्स आएगा, कोई सफिक्स नहीं आएगा. ठीक है, सो फोर्थ इज हैलो अल्केन. Fourth is haloalkane and their functional group is halogen. And remember that here halogen can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Its structural formula is Rx, but again you cannot take R equal to H, because if you take R equal to H it becomes halo acids. The example which I am taking for illustration is CH3Cl. This is known as chloromethane. The prefix that we are going to use is halo. Like fluorine will becomes fluoro, chlorine will becomes chloro, bromine will become bromo, iodine will become iodo, and there is no suffix for it. Okay, Okay, then talking about fifth one is ether. To identify ether you need to see O bond O, and its structural representation is R O R dash. Okay, remember that R slash R dash cannot be equal to H. If both are equal to H it becomes water. If either one is equal to H it becomes alcohol. दोनों ही नहीं है वो, तो दोनों को ही आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते, आपको दोनों को अल्काइल ग्रुप ही लेना पड़ेगा. एग्जाम्पल CH3O CH3, this is known as methoxy methane, and its prefix name is alkoxy. Its prefix name is alkoxy. कैसे? alkoxy, like alkoxy, alkyl plus oxygen becomes alkoxy. यहाँ पे देखो methoxy, like methyl plus oxygen will become methoxy. So इस तरह से नाम होगा. ठीक है, and yes there is no suffix for it. Sixth one अगर हम डिस्कस करें, so it is थायोईथर. ठीक है, थायो का मतलब समझ लेना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थायो का मतलब एक ही है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दो तो इट सिंपली बिकम्स व्हाट, थायो ईथर. या कोई भी अगर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, अगर वहाँ पे आप SH कर दोगे तो इट बिकम्स थायोल, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे. तो यहाँ पे सिंपली इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, S. बाकी के सारे कंडीशन सेम होंगे, R S R dash. Similarly R और R dash cannot be equal to H. यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3S CH3, this is nothing but dimethyl thio ether, and its prefix name is
alkyl thio, and there is no suffix. ठीक है, it's my request that kindly pause the video and go through it once. I hope you must have gone through this. Proceeding further in the session, 6 हो गए. Coming upon to the 7th one, nitro and 8 nitrite. The only reason I am marking both of them together is they are functional group. दोनों का ही functional group है NO2. दोनों का ही functional group क्या है NO2. बट एक का जो structural representation है it is RN double bond O minus with a positive charge, एंड दूसरे वाले का जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है. सो यू कैन सी देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग. यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, वेयर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है. बट एक चीज़ जो इसमें और ऐड की जा सकती है, दे बोथ आर फंक्शनल isomers of each other. They both are what? Functional isomers of each other. दोनों का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. CH3NO2 एंड इसका होगा CH3ONO. दिस इज नाइट्रोमीथेन एंड दिस इज मिथाइल नाइट्राइट. ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स है दैट इज नाइट्रो, नो सफिक्स. नॉर्मली डज नॉट हैव एनी प्रीफिक्स, बट हमेशा इसको हम सफिक्स में ही लिखते हैं एज एन नाइट्राइट. तो इस चीज़ के बारे में याद रखना. तो सेकेंड सेट अगर आप ध्यान दोगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है, सफिक्स नहीं लिखा है. अब से जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका प्रीफिक्स भी होगा और सफिक्स भी होगा, और भी एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी. स्टार्टिंग विथ नाइन्थ वन. नाइन्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत फेमस ग्रुप है. आई होप आपको पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ COOH, या कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो CO2H भी लिख सकते हैं. आपको पता होना चाहिए CO2H का भी मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर में RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, यहाँ पे R कैन बी इक्वल टू H. मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. थोड़ी देर में आपको रीज़न समझ जाएगा कि ऐसा क्यों स्ट्रक्चर में दो ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, द एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर इज HCOOH. इट इज नोन एज मिथेनॉइक एसिड. अब दो स्ट्रक्चर लिखने का रीज़न बताता हूँ. एक स्ट्रक्चर में हम मान लेते हैं दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. अब से जब मैं रेड कलर का ब्रैकेट लगाऊंगा कार्बन को, उसका सिंपल मतलब ये समझना है कि दैट कार्बन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. और अगर मैं नहीं लगाऊं तो कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. और ये मैं तभी करूँगा जब व्हेन फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बन. ठीक है, सो इफ दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, वी डू नॉट हैव एनी प्रीफिक्स, but we do have suffix for it, that is oic acid. And if it is not a part of longest chain, we have prefix as carboxy and suffix as carboxylic acid. Okay,
तो आई होप आपको एक क्लियर बाइफर्केशन समझ रहा होगा. इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नो प्रीफिक्स, suffix is oic acid. If it is not a part of longest chain, carboxy, and the suffix is carboxylic acid. Second one that we are discussing is 10th one, that was 9th, and 10th one that we are discussing is sulfonic. In some book you will find it as sulfonic acid. Both are one and the same, and its functional group is RSO3H. Its functional group is SO3H, and it can be represented as RS double bond O OH double bond O. ठीक है. Remember, it cannot be R cannot be equal to H, क्योंकि जैसे ही वो H हो गया तो it will become H2SO3, which is an acid, inorganic acid. Okay, so the example that I am taking over here is CH3SO3H. It is known as methyl sulfonic acid, or you can write methyl sulfonic acid. Both are one and the same. Talking about prefix, you can use prefix as sulfo or sulfo. Again, both things are right, no issues of that. And finally, its suffix is sulfonic acid, or again sulfonic acid. Both are again one and the same. Please pause the video and go through it once. I hope that आपने वो सेशन का हिस्सा गो थ्रू कर लिया होगा. प्रोसीड करते हैं सेशन में. 10 फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया है. टॉकिंग अबाउट 11th वन इज अनहाइड्राइड. अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, or we can also mark it as CO twice O. CO twice O. तो इस तरह से भी शॉर्टकट में ये दे सकते हैं. ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इट इज R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश. ठीक है, यहाँ पे वापस से R and R dash can be equal to H, but H ही हो ऐसा कंपल्सरी नहीं. इट कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप एज वेल. इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है. सफिक्स में हम लिखते हैं ओइक अनहाइड्राइड. ओके, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डिस्कस करना हो तो इट विल बी CH3 CO O C double bond O CH3. It becomes methanoic anhydride. So that was 11th. Talking about 12th one, okay. 12th is ester. ओके, एस्टर का अगर हम फंक्शनल ग्रुप बोले तो पहले तो आप इसको CO2 करके याद कर सकते हो, या COO इस तरह से याद कर सकते हो. इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा R C डबल बॉन्ड O R डैश. यहाँ पे आप लोगों को मेरे को ये बताना है R तो इक्वल टू हो जाएगा H के. क्या R डैश इक्वल टू H हो सकता है? आपको बस कमेंट करना है यस और नो. क्या R डैश इक्वल टू H हो सकता है? आई होप आपने कमेंट किया होगा. R डैश इक्वल टू H नहीं हो सकता. आंसर इज नो. व्हाई? द मोमेंट R डैश इक्वल टू H, it becomes carboxylic acid. Again I am going to mark two structure.
R C double bond O R dash. If this carbon is a part of longest chain, if you remember carboxylic acid में मैंने बताया अगर longest chain का हिस्सा है तो prefix suffix अलग आएगा और अगर हिस्सा नहीं है तो prefix और suffix अलग आएगा. तो if it is a part of longest chain there is no prefix, okay, and its suffix is OH. If it is not a part of longest chain, its suffix is alkyl oxygen, becomes alkoxy. So alk oxy, and this group is known as carbonyl. So entire prefix is alkoxy carbonyl, and its suffix is carbonyl and its suffix is carbonyl chloride. तो ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को. और एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, याद रखना अगर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो और वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा ना हो तो उसके सफिक्स में हमेशा कार्ब वर्ड हमेशा मिलेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड. और एक दो एग्जाम्पल में मैं आपको प्रूफ करता हूँ इसको. एग्जाम्पल के लिए वन ऑफ द फैमिली मेंबर हम डिस्कस कर लेते. H C double bond O CH3. So its name is methyl मिथेनॉइड. अभी तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा ले लिया, बट मान लो अगर नहीं होता ये लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा तो मैं इसको बोलता मिथॉक्सी कार्बोनिल. क्या बोलता मैं? मिथॉक्सी कार्बोनिल. तो प्लीज ये चीज याद रखना एक बार. 12th हो गया, 13th वाला डिस्कस करते हैं. 13th इज असाइल हलाइड. असाइल हलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COX. X के बारे में जो चीज आपको पता है वही है, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. बट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम क्लोरीन को ही यूज करेंगे. ज्यादातर हम क्लोरीन, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट थोड़ा बहुत ब्रोमीन, बट ज्यादातर अपना क्लोरीन से ही काम चलने वाला है. तो आगे के एग्जाम्पल्स भी मैं क्लोरीन लेके ही बताऊंगा या हैलोजन लेके करते हैं, बट ज्यादातर हम क्लोरीन को ही रखेंगे. इट्स स्ट्रक्चर इज R C डबल बॉन्ड O हैलोजन. यहाँ पे भी याद रखना R कैन बी इक्वल टू H. वापस से दो स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, R C डबल बॉन्ड O X. इफ दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, कोई सफिक्स नहीं आ सकता है इसका, बट द प्रीफिक्स विल बी ऑयल halide. Okay, and if it is not a part of longest chain, its prefix will be halo. Prefix will be halocarbonyl. Okay, and its suffix will be carbonyl halide. सॉरी मैंने गलती से क्लोराइड लिख दिया. इट इज कार्बोनिल halide. ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. H C डबल बॉन्ड O Cl. सो दिस इज मिथेनॉइल क्लोराइड. तो आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा, सेशन का ये वाला सेगमेंट. प्लीज़ वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट अहेड विथ इट. आई होप आपने गो थ्रू कर लिया होगा. लेट अस स्टार्ट विद द 14th फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज अमाइड. अमाइड functional group is CONH2. Its structural formula is
R C NH2 double bond O. Okay, again over here R can be equal to H. दो स्ट्रक्चर वापस से मार्क कर रहा हूँ सो दैट प्रीफिक्स एंड सफिक्स समझ सके. Now, if it is a part of longest chain, no prefix, suffix is amide. If it is not a part of longest chain, its prefix becomes carbomyl and its suffix becomes carboxamide. Okay. Now, example, we can take CH3 CO NH2 जिसको हम कहते हैं इथेनामाइड. Okay, then talking about 15th, nitrile and cyanide. Okay, talking about nitrile, its representation or its functional group is CN. It can be represented as R C triple bond N and again R C triple bond N, but you cannot take R is equal to H because HCN is an inorganic acid. ठीक है, तो अगर लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है तो कुछ नहीं, सफिक्स लगा देंगे हम नाइट्राइल LE. ओके, एंड अगर लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है तो ये बन जाएगा साइनो एंड यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल. मैंने आपको हिंट ऑलरेडी पहले दे रखा है. ठीक है, हिंट क्या दे रखा है मैंने आपको कि अगर सफिक्स लिखना है, कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्ब वाले वर्ड से स्टार्ट करना है, और अगर नहीं है मतलब फॉर एन एग्जांपल जैसे इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ब्रैकेट लगाना भूल गया तो आपको वो नाम याद रखना पड़ेगा. ये नाइट्राइल है, ट्राइट नहीं है, नाइट्राइल LE. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CN, सो इट इज़ नोन एज इथेन नाइट्राइल. फेयर इनफ. अब यहीं पे मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ. देर आर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. अगेन आई विल रिपीट, देर आर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स नेमिंग अनहाइड्राइड, एस्टर, असाइल हलाइड, अमाइड एंड साइनाइड्स. ठीक है, साइनाइड्स को कोई कोई बुक बोलता है, कोई कोई बुक बोलता नहीं है. हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि इट्स एन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. तो टोटल 5 है. अगेन आई विल रिपीट, अनहाइड्राइड, एस्टर, असाइल हलाइड, अमाइड एंड साइनाइड्स और नाइट्राइल्स. फेयर इनफ. ठीक है, देन 16th वाला इज आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन It is represented as NC. Its functional group is NC, represented as R N triple bond C negative and a positive charge. Its prefix. अब ये प्रीफिक्स अफिक्स का लॉन्गेस्ट चेन हिस्सा वाला सब कुछ ऑलमोस्ट जा चुका है. इसमें अपने को ये दिक्कत नहीं है बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन है ही नहीं, तो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा ये बन ही नहीं सकता. इट्स प्रीफिक्स इज आइसोसाइनो एंड इट्स सफिक्स इज आइसोसाइनाइड. तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. बट एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बोलना है वो ये है, दे बोथ आर functional isomer of each other. Again, they both are what? Functional isomer of each other. तो example के लिए CH3 NC, this is known as methyl isocyanide.
मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। 16th फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, प्लीज़ एक बार पॉज करके गो थ्रू कर लीजिए। आई होप दैट आपने गो थ्रू कर लिया होगा। 16th फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। कमिंग अपॉन टू 17th वाला है अल्डिहाइड। Aldehyde, its functional group is CHO. Its structural formula is again R C double bond O H. Here R can be equal to H. सेकेंड स्ट्रक्चर वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, R C डबल बॉन्ड O H। दो चीज़ें वापस से होने वाली है। If it is a part of longest chain, it becomes oxo and its suffix is al, al. If carbon is not a part of longest chain, it becomes formyl and कार्बल्डिहाइड। सो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। H C डबल बॉन्ड O H, so this is मिथेनॉल। 17 में स्टार्ट करते हैं। अब ये सारा झंझट खत्म होने वाला है, ठीक है, मतलब खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो ही गया है। अब आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है कि कार्बन हिस्सा हो या ना हो, बिकॉज अब से हम जितना भी डिस्कशन करने वाले उसमें सिंपल प्रीफिक्स याद रखना है, उसका सफिक्स याद रखना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सिर्फ 6-7 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसको आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है तो क्या लेना है और लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है तो क्या लेना है, दैट इज़ प्रीफिक्स और सफिक्स में। स्टार्ट करते हैं 18th वाले से। 18th इज कीटोन। ओके, कीटोन functional group is CO. Its structural formula is R C डबल बॉन्ड O R डैश। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों ही R को H से कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मिथेनॉल, तो अल्डिहाइड। अगर कोई भी एक R को या तो R को या तो R डैश को अगर मैं H से कन्वर्ट कर दूँ तो बन जाएगा अल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों R क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। दैट मीन्स R and R dash cannot be equal to H। ओके, इसका जो प्रीफिक्स है उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सो एंड इसका जो सफिक्स है ओन। कभी कभी ऑक्सो को कीटो भी कहा जाता है, ठीक है, कभी कभी ऑक्सो को कीटो भी कहा जाता है। एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, जो गर्ल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, दैट इज़ नेल पॉलिश रिमूवर। ओके, एंड नेल पॉलिश रिमूवर इज़ नथिंग बट एसीटोन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है। कमिंग अपॉन टू द 19th पार्ट। 19th one is alcohol and 20th one is thiol। बिफोर आई प्रोसीड विथ अल्कोहल एंड थायोल, एक चीज़ और बता दूँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब आते हैं अल्कोहल पे। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, सो थायोल का फंक्शनल ग्रुप SH, ठीक है। थायोल को थायो अल्कोहल भी कहा जाता है एंड मर्काप्टेंस भी कहा जाता है। थायोल को थायो अल्कोहल या मर्काप्टेंस भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे मार्क कर दो ROH, यहाँ पे मार्क कर दो RSH। दोनों ही जगह आप R शुड नॉट बी इक्वल टू H, क्योंकि यहाँ पे H लोगे तो ये वाटर बना देगा, और अगर आपने यहाँ पे H ले लिया तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा, दैट इज़ H2S। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3OH।
सेम एग्जाम्पल CH3SH, तो इसको मैं लिखूँगा मिथाइल अल्कोहल, इसको मैं लिखूँगा मिथाइल थायोल या थायो अल्कोहल। ओके, इसका जो प्रीफिक्स है दैट इज हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स है मरकैप्टो, इसका सफिक्स है ऑल और इसका सफिक्स है थायोल। ठीक है, सो अगेन 20 फंक्शनल ग्रुप्स हो चुके हैं और फंक्शनल ग्रुप बाकी है। बिफोर वी प्रोसीड प्लीज़ एक बार यहाँ पे पॉज कर लीजिए वीडियो एंड गो थ्रू कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। 20 फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। विल स्टार्ट विद 21st अमाइन। अगर आप लोगों को याद है डिग्री ऑफ अमाइंस में मैंने 3 डिग्रीज पढ़ाए थे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। अभी के लिए मैं सिर्फ प्राइमरी अमाइन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या था? NH2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इट विल बी R NH2। टॉकिंग अबाउट R, आप R को H के बराबर मत करना बिकॉज ये वापस से अमोनिया बन जाएगा। इसका जो प्रीफिक्स है दैट इज अमीनो। ठीक है, इसका जो सफिक्स है दैट इज अमाइन एंड इसका जो एग्जाम्पल है CH3NH2 दैट इज मिथाइल अमाइन। इट इज मिथाइल अमाइन। तो यहाँ तक दैट इज 21 फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ा है। यहाँ तक आपको सबके प्रीफिक्स एंड सफिक्स याद होने चाहिए। बट द गुड न्यूज़ इज इसके बाद जितने भी मैं फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा रहा हूँ उसका सिर्फ क्लास ऑफ कंपाउंड याद होना चाहिए और उसका फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। अगेन क्लास ऑफ कंपाउंड याद होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। सो 22 मैं बात करूँगा नाइट्रोसो के बारे में। नाइट्रोसो का फंक्शनल ग्रुप होता है NO एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम RN डबल बॉन्ड O। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो C6H5NO। इसका नाम है नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट 23rd वन, इसको हम बोलते हैं डायज़ो कंपाउंड्स। ठीक है, डायज़ो कंपाउंड्स को हम कैसे पहचानेंगे? N2 या बेसिकली इट हैज़ टू बी RN डबल बॉन्ड N R'। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे एजो का मतलब ही होता है नाइट्रोजन। ठीक है, एजो का मतलब ही क्या होता है? नाइट्रोजन। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिली होगी। डाई एजो मतलब 2 नाइट्रोजन, इस तरह से। एंड ये जो ग्रुप है ये एजो ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं डायज़ो। ठीक है, अगेन आप R की वैल्यू H नहीं कर सकते। ठीक है, तो R एंड R' कैन नॉट बी इक्वल टू H। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ CH3N डबल बॉन्ड N CH3, दैट इज नथिंग बट डाई एजो मीथेन। 24th वाले को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली हम इसको डिस्कस करेंगे। दैट इज डाई अजोनियम क्लोराइड, या कोई भी हलाइड ले सकते हैं आप, ब्रोमाइड भी, बट ज़्यादातर क्या होगा? डायज़ोनियम क्लोराइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो इस तरह का होगा N2+ एंड Cl-। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है
N2 प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू H एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज N2 प्लस एंड Cl माइनस आयन होगा, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा हम इसके रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको याद रखना, ठीक है। सो 24 फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो पॉज करके ही आगे बढ़ना। सो आगे बढ़ते हैं। 25th इज अजाइड। अजाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है N3। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N विथ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो अगर एक आधा एग्जाम्पल लेना है तो यू कैन टेक मिथाइल अजाइड। इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल अजाइड। हम प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं डिस्कस कर रहे, ये सारे कंपाउंड्स का या फंक्शनल ग्रुप्स का। 25 हो गया। Talking about 26, again one of the important functional group is oxime. Its functional group is C double bond N OH, ठीक है। अगर ये बेसिकली ऑक्साइम्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो अगर अल्डिहाइड से बनेगा तो अल्डोक्साइम्स कहेंगे और अगर कीटोन से बनेगा तो कीटोक्साइम्स कहेंगे। जब प्रॉपर कॉन्सेप्ट आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। बट येस, यहाँ पे R C R डैश डबल बॉन्ड N OH। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि R या R डैश कैन बी इक्वल टू H, ठीक है। अभी तो फिलहाल CH3 CH डबल बॉन्ड N OH मैंने अल्डिहाइड से प्रोडक्ट बनाया है, तो इसको मैं लूँगा एसिटोऑक्साइम, ठीक है। एसिटोऑक्साइम क्योंकि मैंने एसिड अल्डिहाइड से प्रोडक्ट बनाया। टॉकिंग अबाउट 27th, अभी कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स जो हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। सबसे पहला हेमी एसिटल, अगेन अल्डिहाइड से बना है तो एसिटल, कीटोन से बना है तो कीटल। हेमी मतलब हाफ, ठीक है। सो 28 वाला कंप्लीट एसिटल भी ले लेते हैं। तो पहले मैं एसिटल समझाता हूँ क्या होता है। एसिटल्स आर बेसिकली एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप। एसिटल्स आर बेसिकली व्हाट, एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप। हेमी एसिटल का मतलब होता है एक OH और एक OR, ठीक है। सो हेमी एसिटल एंड एसिटल, हेमी मतलब हाफ, ठीक है। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ एसिटल, कंप्लीट एसिटल, ठीक है। अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज रिप्रेजेंट करना हो तो इट हैज़ टू बी CH3 C OH H O CH3, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा एसिटल, इसको मैं बोलूँगा हेमी एसिटल, ठीक है। एंड CH3 C OCH3 OCH3 H, इसको मैं बोलूँगा एसिटल, ठीक है। यहाँ से आप पॉज करके ही आगे बढ़ना। टॉकिंग अबाउट 29th,
ये भी 2-4 कॉन्सेप्ट्स में अपने को मिलेंगे। इमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इट इज़ लाइक C डबल बॉन्ड NH। अगेन अल्डिहाइड या कीटोन्स में ही अपने को मिलेगा, तो इमाइंस का ये फंक्शनल ग्रुप होता है। टॉकिंग अबाउट द 30th, ठीक है, ये होते हैं सल्फॉक्साइड। ठीक है, सल्फॉक्साइड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एंड एक जो इम्पॉर्टेंट सल्फॉक्साइड हमें डिस्कस करना है वो है CH3S डबल बॉन्ड O CH3। इसको ज़्यादातर आप बुक में इस तरह से लिखा हुआ पाओगे, DMSO, विच इज़ नथिंग बट डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। क्लाउड में रखते हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए अपने को। सो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जो अपने को क्या होना चाहिए, बेसिकली याद होना चाहिए सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही हैं, और भी मिलेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिटेल्स, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स अपने को मिलेंगे। बट इतने याद रखने से आपकी लाइफ ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, एंड स्पेशली जेई मेंस जैसे लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा कोई और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट यस, हम आगे डिस्कस करेंगे अगर कोई नए फंक्शनल ग्रुप्स आए तो। जाते जाते एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ नथिंग बट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त लगेगा जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखेंगे, तब आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना है वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर आप लोगों को याद होना चाहिए। द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रायर ग्रुप इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया तो लाइफ जिंगा लाला, क्यों? क्योंकि फिर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यस, ऐसा नहीं कि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा, तो प्लीज़ याद ज़रूर रखना इसको। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड वन इज सल्फोनिक एसिड, थर्ड वन इज अनहाइड्राइड, then it is ester, then it is acyl halide, then it is amide, then cyanides, then comes aldehyde, then comes ketone, then comes alcohol, thiol, amine, double bond and ट्रिपल बॉन्ड। वापस से कह दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये, ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। और अगर आप इस वीडियो को वापस से बैक करके, जब मैंने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया था स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को पीछे ले जाओगे और कार्बोक्सिलिक वाले सेगमेंट से स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यही ऑर्डर में आपको पूरा का पूरा लिस्ट लिखवाया है। द रीज़न ऑफ सिलेक्टिंग दैट लिस्ट वॉज दिस प्रायोरिटी ऑर्डर। तो अगर आपको वो याद है तो आपको ये प्रायोरिटी टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो मैंने बहुत दिमाग लगा के बहुत ही चीकी वे में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, तो दैट अगर आपने वो लिस्ट याद कर दी तो ये वाली लिस्ट याद करने में टाइम नहीं जाएगी, ठीक है। अब आज के लिए मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ, एंड यस,
नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कॉमन नेमिंग भी देखेंगे एंड IUPAC भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सेशन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट डाल सकते हो। नोट्स अगर तुमने नहीं बनाए तो दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को फॉलो कर लो एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड नोट्स ऑफ वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चिल्ड आउट रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, सो विद दिस थिंग आई विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो। हम जल्दी मिलेंगे, टेक केयर।